Good morning, guys. Under IP services, we have to cover topics like DSCP, So these are the topics that we have to cover under IP services. So today I will start with DSCP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, or you can understand it like this: the protocol which will configure IP address on host dynamically. A protocol which will configure IP address on host dynamically. Fine. Now I think all of you know DSCP is a layer 7 protocol. It is UDP based. It will be using port number 67 and 68. Where these two different port numbers are used, I will tell you, wait for some time. DSCP works on a process called DORA. DORA stands for Discover, Offer, Request, Acknowledgement. These are message types in DSCP. What do we have? Message types in which message types? Discover, Offer, Request, Acknowledgement. So shall we discuss this process? इस प्रोसेस को डिस्कस करें. You can configure Cisco routers and layer 3 as DSCP server. This thing is clear. It means in real time scenario, if I talk about the designs, mostly we are using layer 3 switches as DSCP server. And what is my design nowadays? Let's say this is my layer 3 switch. It will be connected to access layer switches. To these access layer switches, users will be connected, and this multi-layer switch will be acting as DSCP server as well as our gateway. Clear, guys? Yes. Any problem? बाबरा मन देखने
चला एक सपना। चले भाई। और आप आज तक डिजाइन कैसा बनाते थे? In this case, router is acting as gateway also and DHCP. But in this case, my multi-layer switch will be acting as DHCP server as well as gateway. Gateway पता ना क्या होता है? Default gateway. Which gateway I am talking about here? Default gateway. Clear? So what will be the process? Look here. Let's say this is a multi-layer switch and a user is connected to it. So whenever this user needs a IP address, what it will do? It will send which packet? Discover is always broadcast. Now the thing is how discover packet looks like. First of all, I will be having at layer 7 DHCP header. After that we will be having transport layer, UDP header. After that we have layer 3 header, source IP, destination IP. After that we have source MAC, destination MAC. Source IP will be, destination IP will be done. Source MAC will be MAC address of user. Let's say this user is having MAC address A. Destination MAC will be all F. It means broadcast. बात समझ में आई सबको? आई ना? Whenever this user will send discover packet, it will be received by layer 3 switch. आलोक क्या हुआ? दिख रहा है? Whenever this user will send discover packet, it will be received by layer 3 switch. Now layer 3 switch will forward information on the basis of, first of all, on the basis of layer 2 information, layer 2 header. In layer 2 header, destination MAC address is, so it will try to broadcast this traffic. Clear? So it will forward it to all the users, as well as it will forward it to SVI of to whom? SVI of, let's say that these ports are member of VLAN 10. So I have to create SVI for VLAN 10 and I have to give it IP manually. So this switch will forward this particular broadcast to all the physical ports and also to a SVI, also to my SVI. Clear, bhai? This thing is clear? Layer 3 switch. Done. So whenever this user needs IP, it will send which packet? Which packet? Discover. Discover packet will be received by switch. Switch will check which information? It will broadcast it to all the users and also to the SVI. Whenever this particular discover is received on SVI, now switch will check which information? Layer 3, then layer 4, and switch will get to know this is DHCP
discover packet. After which we'll get to know this is DHCP discover packets, which will check for a pool. Switch will check for a pool. Checking for a pool means switch is checking that it is acting as DHCP server or not. You're getting my concern? Checking for a pool means it is actually checking, or it is actually asking, or it is actually checking on itself that it is acting as a DHCP server or not. वो चेक करता है कि अगर पूल कॉन्फ़िगर्ड है तो वो DHCP सर्वर है, अगर पूल कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो DHCP सर्वर नहीं है. Clear? Now if pool is configured, क्या बोला मैंने? If pool is configured, layer 3 switch will take a IP from the pool and offer it to the user. वो IP को किसको ऑफर कर देगा? यूजर. समझ में आई इतनी बात? कोई प्रॉब्लम? DHCP सर्वर नेटवर्क में कहीं भी हो सकता है ना यार, मेरी सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में. यार अब आप ना डायग्राम को छोटे तरीके से सोच रहे हो, मैंने पहले ये डायग्राम बनाया था भाई. फिर मैंने समझाने के लिए क्या किया, डायरेक्टली मल्टी लेयर से उससे किसको कनेक्ट कर दिया? यूजर. फाइन. इतनी बात समझ में आई? So whenever your layer 3 switch will send offer packet is also broadcast. Is also broadcast. इतनी बात समझ में आई? आगे चले. Now offer is received by the user. User will send request and then DHCP server will send acknowledgement. Then DHCP server will send acknowledgement. इतनी बात समझ में आई? हाँ जी, करके दिखा देता हूँ ये सारी चीजें. भाई एक बात बताओ यार, इसका क्वेश्चन है कि यूजर को आईपी ऑफर हो गई, उसके बाद रिक्वेस्ट की चीज की गई. लेट से भाई मेरे नेटवर्क में 3 DHCP सर्वर थे, मैंने रिडंडेंसी के लिए बना रखे थे. ठीक है भाई. लेट से इन माय नेटवर्क आई हैव 3 DHCP सर्वर. आई हैव कॉन्फिगर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडंडेंसी. आई गॉट ऑफर फ्रॉम 3 सर्वर्स. इट्स माय विश नाउ दैट whom I will request for the IP. तीनों थोड़ा ना दे देंगे आईपी मुझे. आईपी कितने बंदे देंगे भाई? मुझे 500 रुपए चाहिए थे, मैंने मांगे भाई 500 रुपए दे दो. 6 लोग आके खड़े हो गए 500 रुपए लेके. तो ऐसा थोड़ा ना मुझे 3000 रुपए चाहिए. तो अभी भी मुझे कितने पैसे? 500. एक बंदा देगा, उससे ले लूंगा और लिख लूंगा अपने पास, हाँ भाई इसके मेरे को पैसे वापस देने हैं. 5 को क्या कह दूंगा? थैंक यू. ठीक है भाई, ऐसे होता है यार. दिखाऊंगा, हर चीज दिखाऊंगा यार, क्या होगा. सिस्टम के दोस्त, तुम्हारा वो दोस्त नहीं आ रहा एक, है ना? ठीक है ना यार. उसको जो मैं कह रहा था टैटू बनवाने चलेंगे. देखो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द बेसिक प्रोसेस कि हाँ भाई ये DHCP सर्वर है, ये नॉर्मल यूजर्स है, इनको भी यूजर ट्रीट कराऊंगा. ये मेरा एक्चुअल यूजर होगा. एक्चुअल यूजर मतलब मेरा खुद का सिस्टम, मेरा खुद का पीसी. ठीक है भाई.
बावरे से मन की देखो बावरी है बातें। VM8 से कनेक्ट करते हैं, VM2 से। देखो भाई ध्यान से देखना यार, इनका सिंबल चेंज कर दूं R2 R3 का। नाम भी चेंज कर दूं। बाबरा मन देखने चला ठीक है भाई। R1 को IP दे देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कुछ भी ना समझ में आए पूछ लेना। करें भाई कॉन्फ़िगरेशन। मनोज ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से नहीं लगाऊंगा। ये कमांड दिख रही है आपको, IP DHCP। ये कमांड क्या करती है, ध्यान से सुनना। अब ये कमांड आपके राउटर पे DHCP सर्विस को एनेबल करती है। दिस कमांड विल एनेबल DHCP सर्विस ऑन द राउटर। ठीक है भाई। अब पूल को क्या देना है, एक सोने आया है रिबॉक, जबकि मार रहा था तू, पकड़ा गया अभी तो। ये लो पूल बना दिया मैंने, किस नाम से, वीलेंट है। अब एक बंदा कहता है सर कि मैं सारी वीलेंस के लिए एक ही पूल नहीं बना सकता, हर तरह की मदद के लिए एक ही दोस्त को याद कर सकते हो। अलग अलग तरह की मदद के लिए अलग अलग तरह के दोस्त को याद करना पड़ता है भाई। तो सिमिलर चीज यहाँ पे है कि भाई हर नेटवर्क के लिए अलग से क्या बनाना पड़ेगा, एक पूल। क्या बनाना पड़ेगा, एक पूल। जितनी वीलेंस है उतने क्या बनेंगे, पूल। जितने नेटवर्क है उतने क्या बनेंगे, पूल। एक ही पूल से काम नहीं चलेगा। अब DHCP पूल के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं। आपने CCNA में पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिकल किया होगा, तो वहां पे उन्होंने कह दिया होगा क्वेश्चन मार्क डाल लो। 4 कमांड है, 4 ही टाइप करनी है। यहाँ पे 10,000 कमांड है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहली कमांड कौन सी चलाएंगे भाई लोगों, देखो क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क नंबर एंड मास्क। तो हम कमांड चलाएंगे नेटवर्क। विच नेटवर्क, मास्क। ठीक है जी। दिस इज द पूल आई हैव क्रिएटेड, के /24 का मैंने एक पूल क्या कर दिया, क्रिएट। सेकेंड थिंग, डिफॉल्ट राउटर कमांड। डिफॉल्ट राउटर क्या बताने के लिए है, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे विल बी, अब DNS भी देना चाहते हो, DNS भी दे दो, पर DNS में वेरीफाई नहीं करवाऊंगा। चलो करवा दो। बना दिया। अपने पूल में 3 चीजें दी हैं अभी मैंने, चौथी चीज सोचना भी मत। नाउ what I can do from this pool, I can also exclude the addresses which I don't want to assign to my users.
इस पूल में से मैं कुछ एड्रेसेस को क्या करवा सकता हूं, एक्सक्लूड, जो मैं अपने यूजर्स को असाइन करना नहीं चाहता। कमांड इज 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.10 तक तो एक्सक्लूड कर दे। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो कहां से आईपी देना स्टार्ट करेगा? अब ये दिख रहा है आपको, मैंने कमांड क्या चलाई है, ध्यान से पढ़ो। पूल क्या नाम क्या है, टोटल एड्रेसेस कितने अवेलेबल हैं, एक्सक्लूड कितने कर दिए हैं मैंने, दिख रहे हैं? ये नई कमांड होगी आप लोगों के लिए शायद, क्या पता आपने पहले देखी भी हो, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। ठीक है भाई, करंट इंडेक्स का मतलब क्या है, द नेक्स्ट आईपी इट इज गोइंग टू ऑफर, द नेक्स्ट आईपी इट इज गोइंग टू ऑफर। लेकिन जबकि मैंने ये आईपी एक्सक्लूड करा दिया है, तो अब ऑफर कौन सी करेगा, 1.11। कौन सी ऑफर करेगा, 1.11। क्लियर भाई, इतना समझ में आया सबको? अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, क्या कमांड चला रहा हूं यहाँ पे, डीबग आईपी डीएचसीपी, क्या कमांड चलाइए, पढ़ो। मैंने इस राउटर को बोला जो भी डीएचसीपी सर्वर के लिए पैकेट्स आए उनको क्या करना, डीबग। प्लीज डीबग ऑल द पैकेट्स विच आर रिसीव्ड फॉर डीएचसीपी सर्वर। चला दी कमांड। अब नीचे यूजर से क्या भेजूंगा, डिस्कवर। क्या भेजूंगा, डिस्कवर। क्लियर भाई, डीएचसीपी सर्वर बना दिया ना? अरे कोई दिक्कत है? कोई ना, बढ़िया, यही चाहिए था। कैप्चर कर लें पाकिस्तान को। मोदी जी रो पड़े यार, बहुत बुरा लगा, भावुक हो गए, कर दिया तुमने भावुक। देखो होस्ट 3 का इंटरफेस क्या है, FA0/0, तो मैं गया इंटरफेस FA0/0। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या किया, लोग ये गलती करते हैं, राउटर पे चले जाएंगे, डीएचसीपी सर्वर भी बना लेंगे, इंटरफेस को नो शट नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्टली क्या दिख देंगे, आईपी एड्रेस, और एंटर मार के बैठे, सर आईपी नहीं मिल रही, आईपी नहीं मिल रही। भाई नो शट तो कर ले, भावुक क्यों हो रहा है? ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। As soon as I run this command, this device will send which type of packet? Discover. रिक्वेस्ट भेज देगा सीधा। वो डिस्कवर ऑफर भी पढ़ा था पहले हमने। देखो पहले जाएगा डिस्कवर, फिर आएगा ऑफर, फिर मैं भेजूंगा और फिर आएगी। ठीक है जी, देखो आईपी एड्रेस, राउटर पे पीसी यूज कर रहे हैं, राउटर डिसेबल नहीं करेंगे, कमांड होती है। अरे जरूरत नहीं है। अरे कहाँ गया R1? हाँ जी, यहाँ आ जाओ पहले, आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये क्या है इतनी बड़ी, है ना भाई, निरी ही बड़ी, निरी मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी, हर कुछ ही बड़ी, है ना भाई, हर कुछ ही बड़ी। भाई इसको बोलते हैं क्लाइंट आईडी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब बात क्या है, ध्यान से समझना। मेरा ये राउटर है ना, ये डिवाइस क्या है, राउटर। राउटर जब भी अपनी क्लाइंट आईडी बनाता है,
whenever the router will form its client ID, it will just not use MAC address. हम क्या सोचते हैं? What do we think? That DHCP server is having information of all the clients, that to which client which IP address is assigned. यही सोचते हैं ना कि DHCP सर्वर के पास सारे क्लाइंट्स की क्या होती है? इंफॉर्मेशन. And it is also having the information that to which client. Client means here we are talking about MAC address of client. इसके बारे में बात कर रहे हैं. But this is not the actual MAC address. This is not the actual. तो मेरा client भी तो actual नहीं है. My client is also not actual. My client is a router. My client is a. The router will make client ID in a different way. Router client ID अलग तरीके से बनाता है. User client ID अलग तरीके से बनाता है. Clear? Router will form client ID using domain name, interface number, interface type, interface MAC address, all that stuff. User will make client ID using 01 plus its MAC address. 01 plus its MAC address. ये डिफरेंस क्यों आ रहा है क्लाइंट आईडी में? क्योंकि ये डिवाइस कौन सा? राउटर. राउटर का क्लाइंट आईडी बनाने का तरीका क्या है? डिफरेंट. ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आई? अब देखो 1.1 ने फिर क्या किया? ऑफर. ऑफर के बाद क्या ही है? एक और हो गई रिक्वेस्ट. हम एक और काम करते हैं. हम यहाँ पे दोबारा कमांड चला देते हैं आईपी एड्रेस. ये ना बहुत मारूंगा मैं इसको. ये क्या है एक्चुअली? मेरे को अपने VM के अडेप्टर डिसेबल करने पड़ेंगे जाके. ncpa.cpl VM 8 कनेक्ट किया हुआ है ना मैंने. मारना इसको एक बार डिसेबल थोड़ी देर के लिए. अगेन आई हैव रन द कमांड IP address DHCP. ओके, नाउ लुक हियर. पहला पैकेट कौन सा है? दूसरा रिक्वेस्ट एंड देन एक्नॉलेजमेंट. ठीक है जी. अब देखो, डिस्कवर इज ब्रॉडकास्ट, ऑफर इज अगेन ब्रॉडकास्ट, रिक्वेस्ट इज अगेन ब्रॉडकास्ट एंड एक्नॉलेजमेंट इज अगेन क्लियर. नाउ इन डिस्कवर पैकेट चेक सोर्स पोर्ट नंबर, destination port number 67, destination MAC, destination IP. Now you can see here my client identifier. इतनी सारी चीजों से मिला के बनता है आपका क्या? क्लाइंट आइडेंटिफायर. ये लिख रखा है क्लाइंट आइडेंटिफायर. ये देखो DHCP मैसेज टाइप क्या है? डिस्कवर. ये मेरे क्लाइंट का मैक एड्रेस है. ये क्लाइंट का क्या है? मैक एड्रेस. होस्ट नेम, बहुत सारी चीजें होती हैं क्लाइंट आइडेंटिफायर बनाने में. आफ्टर दैट विच मैसेज वी आर गेटिंग? ऑफर भी देखो क्या है? ब्रॉडकास्ट. दिख रहा है ना ब्रॉडकास्ट? विच IP is being offered? 1.11. Then what we are having? Request. Request is again, you can see here, broadcast है. After that we have
एक्नॉलेजमेंट इज अगेन, दिखे ना सबको, विजिबल है। और कौन सी आईपी ऑफर हुई है? बिकॉज आई हैव एक्सक्लूडेड 1.1 to 1.10। क्यों? हाँ हाँ, जब तक तेरा नाम राजा प्रताप सिंह नहीं था तेरे को लोग बुला लेते थे राजा प्रताप सिंह के नाम से। यार बात को समझो ना, मैं अभी आईपी आस्क कर रहा हूं भाई, क्या मैं ये आईपी यूज कर सकता हूं? मेरे को आईपी ऑफर हुई, हाँ भाई तुम ये आईपी यूज कर सकते हो, मैंने मान थोड़ा ना लिया मैं आईपी ये यूज करूंगा। क्या पता मेरे पास मल्टीपल ऑफर आए, मैं कोई और आईपी यूज कर रहा हूं, तो आईपी यूनिकास्ट कैसे होगी? ऑफर सॉरी यूनिकास्ट कैसे होगा भाई? देखो, हाँ बताओ भाई, फिर वही बात है यार, मैं रिक्वेस्ट को यूनिकास्ट कैसे कर सकता हूं? लॉजिक दो मुझे। अभी मैंने डिसाइड कर लिया मैं कौन से डीएससीपी सर्वर से ले रहा हूं आईपी। भाई देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक यूनिकास्ट कम्युनिकेशन तभी कर सकता हूं जब मेरे पास आईपी है और वो मेरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक मुझ पे आईपी नहीं आएगी और मैं उस आईपी की डुप्लीकेसी खुद चेक नहीं कर लूंगा, तब तक मेरा कोई भी कम्युनिकेशन यूनिकास्ट नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टिल नाउ वी आर नॉट हैविंग अ आईपी। आईपी कब मिलती है मुझे पता है? जब मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाती है और उसके बाद उस आईपी के लिए मैं क्या जनरेट करता हूं? ग्रेशियस आर। क्या जनरेट करता हूं? जस्ट टू चेक दैट कि डीएससीपी सर्वर ने मुझे कहीं ऐसी आईपी तो नहीं दे दी जो नेटवर्क में किसी और कोई और भी यूज कर रहा है। दिखाता हूं आपको यार, यहां पे पैकेट होगा। अभी इस यूजर से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर देख लेंगे। बाबरा मन देखने चला, आ जाओ। इंटरफेस FA0/0 नो शट आईपी एड्रेस डीएससीपी। क्लियर भाई? अब आप चाहते हो कि ये राउटर, व्हाट डू यू वांट दैट दिस राउटर आल्सो फॉर्म्स क्लाइंट आईडी यूजिंग द सेम वे एज यूजर विल फॉर्म। बाय डिफॉल्ट राउटर क्लाइंट आईडी बड़ी सी बनाता है। ये देखो डीएससीपी सर्वर पे आओ, शो आईपी डीएससीपी सर्वर, डीएससीपी बाइंडिंग दिख रही है आपको? That this particular IP is assigned to this particular client. दिख रही है क्लाइंट आईडी कितनी बड़ी है? Now what do you want that router also form client ID in the same way as user is forming? तो मैं राउटर को क्या बोलूंगा? IP एड्रेस DHCP client ID, use only MAC address to form the client ID. Use only MAC address of which interface? FA0 to form your client ID. फिर भाई VM से मिलेगी। अभी भी तो नेटवर्क में 2 डीएससीपी सर्वर हैं भाई। मेरे को वीएम से बार बार आईपी नहीं मिल रही, तुम्हें दिख दे रही? देखो दोबारा वीएम से मिल गई। ये मैंने कोई पूल बना रखा है 202?
वेट कर लो यार एक बार। थोड़ी देर के लिए डिसेबल ही मार देता हूँ। अब नहीं मिलेगी। देखो भाई अब क्या आईपी मिल गई? 1.12 मिल गई दोबारा। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। अब बाइंडिंग देखना, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। दिस टाइम बाइंडिंग इज 0 1 in the beginning plus the MAC address of user plus the MAC address of user. Clear भाई ये पंगा? This funda is clear that you can also force a router to use client ID in the same way as it is used by the end user. Fine. Now let's say सर मैक एड्रेस के फर्स्ट नेगलेक्ट कर देता है। हाँ जी, मैक एड्रेस के फर्स्ट टू कैरेक्टर नेगलेक्ट कर देता है। मैक एड्रेस के फर्स्ट 2 कैरेक्टर नेगलेक्ट नहीं कर देता, फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऐड हो जाते हैं। अगली सीडी में जो है हाँ जी, बिगिनिंग में ऐड हो जाएंगे। नाउ लेट्स से माय दिस एंड डिवाइस आल्सो वांट्स आईपी। रिक्वेस्ट करी मैंने आईपी, से आईपी मिल रहा है। कोई नहीं, ओके। ठीक है भाई, VM2 पे आईपी मैंने करवा दिया काम। विंडोज आर, इसको बोल लो कि आईपी मांग ले भाई। ये रखो, आईपी रिक्वेस्ट कर ली इस यूजर से। वन 1.13 मिली हुई है, देख रहे हो? विजिबल है पीछे तक? ठीक है भाई, फिर एक मिनट और रुक जाओ, फिर ये भी दिखा देता हूँ तुम्हें। एक मिनट, स्टार्ट हो रहा है शुक्र। ये इतना सारा ट्रैफिक दिख रहा है आपको?
ये बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम सेंड करता है। देख लो आप, ऑफर है 1.13 ऑफर हो रही है। और क्या है, उसके बाद क्या है, क्या है, उसके बाद क्या है, ये भी क्या है। ठीक है भाई, ये रहा डिस्कवर। डिस्कवर भी क्या था, ब्रॉडकास्ट। ठीक है भाई। सो ऑल द पैकेट डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट आर ब्रॉडकास्ट। क्लियर भाई। सर अगर मल्टीपल DHCP सर्वर्स होंगे तो सबको ही वो बोलेगा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, तो सभी फिर उसको वापस IP देने लग जाएंगे। तेरे को 500 रुपये चाहिए थे, मैंने पहले दे दिए, रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, उससे क्यों लेगा अब। वही तो बात समझाई थी यार अभी थोड़ी देर पहले, आपने क्वेश्चन पूछा था कि इफ आई हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर IP और मुझे IP मिल गई तो मैं दूसरे से क्यों लूंगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट केस भाई, कौन सी IP ऑफर हुई है अभी, 1.13। अब मैं क्या करूंगा, एक यूजर होस्ट 2 को इधर देखो यार फटाफट, DHCP सर्वर पे आओ, शो IP DHCP पूल। कौन सी IP इंडेक्स में अगली, विच इज द नेक्स्ट IP दैट इट विल बी ऑफरिंग, 1.14। मैं क्या करूंगा, होस्ट 2 को पहले से ही दे दूंगा 1.14 दे दी। याद रखना, whenever you shut the interface, whenever you ask for IP again, first of all your end device will send DHCP decline message to DHCP server. Which message? That I will not be using this IP anymore. You can assign this IP to anyone else. जब भी आप राउटर पे इंटरफेस को शट करोगे, अपने सिस्टम को ऑफ करोगे, तो आपका सिस्टम उससे पहले क्या भेजेगा DHCP सर्वर को, DHCP decline message just to inform DHCP server that I will not be using this IP again. Clear guys? दे दी मैंने IP, और मैंने होस्ट 3 पे आके IP एड्रेस DHCP क्या कर दी, दोबारा रिक्वेस्ट कर दी, IP कर दी। कौन सी IP मिली है, 15। अब आप कहोगे सर 14 ऑफर क्यों नहीं हुई। ये देखो कौन सा मैसेज गया हुआ है, मैं DHCP डिक्लाइन बोल रहा था, सॉरी मैसेज कौन सा होता है, DHCP रिलीज। मैसेजेस DHCP, फिर डिस्कवर भेजा यूजर ने, ऑफर कौन सी IP हुई है, देखें कौन सी ऑफर हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, ऑफर ही 15 क्यों हुई है, 14 ऑफर क्यों नहीं हुई। उसे पता कैसे चला 14 यूजर के पास है, राउटर भी जनरेट करता है क्या
अंटा कुछ भी। ग्रेशियस आर्प क्या होती है? व्हाट इज ग्रेशियस आर्प? अपना कंसेप्ट ही गलत बना रखा है आप लोगों ने। भाई ग्रेशियस आर्प क्या होती है ये बताओ। खुद के लिए रिक्वेस्ट। हाँ, विक्रांत और ये लड़का बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जिनकी बात में उनको समझ में आई कि भाई अपनी आईपी की डुप्लीकेसी चेक करने के लिए वी हैव ग्रेशियस आर्प। कि भाई मेरी आईपी कोई और यूज तो नहीं कर रहा, उसके लिए मैं क्या जनरेट करता हूं? आप फंडा समझो यार। तुमने आर्प पकड़ तो लिया, 4-5 लोगों ने कैप्चर देखा होगा उठा के, हाँ यार आर्प तो जारी है, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, आप सर क्या बताएंगे। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर्प का कोई कंसेप्ट नहीं है, पिंग करके देखता है वो। क्या करके देखता है? देखो मैं बताता हूं कंसर्न आपको। डीएचसीपी सर्वर आईपी को ऑफर करने से पहले उस आईपी को क्या करके देखता है? पिंग। अब कंसर्न क्या है? दिस इज अ रूल ऑफ कम्युनिकेशन दैट व्हेनेवर I will try to ping IP. First of all, I must know its MAC address. तभी आपको वहाँ कैप्चर में दिखता क्या है? R. तभी कैप्चर में दिखता क्या है? भाई मैं DHCP सर्वर हूँ। I'm offering IP 1.14. I will try to ping 1.14. But what is the concept? That if I want to ping 1.14, I must know the MAC address of 1.14. So whenever you will capture, what you will see? आपका क्या आ जाएगा? Reply. It means 1.14 is existing. 1.14 is existing. ठीक है भाई, इतना समझ में आया? याद रखना भी चीज को। चले आगे। चले भाई आगे। लास्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन DHCP, व्हाट इज DHCP relay agent? In this case, my DHCP server is existing in the same broadcast domain as my user. In this case, DHCP server is existing in same broadcast domain as of my user, but there can be a chance they are existing in different broadcast domains. They are existing in, हाँ भाई, they are existing in different broadcast domains. What will happen in that case? In that case we have to use, क्या यूज करना पड़ता है हमें? What is relay agent?
ठीक है भाई, इतना समझ में आया? देखो भाई आगे देखो यार, लेट्स से दिस इज माय गेटवे, this is your DHCP server, these are users who want IP, so this gateway will be acting as relay agent. This relay agent will be sending my request to the actual DHCP server. क्लियर भाई, इतना समझ में आया? Now there is only one difference. Let's say this user wants IP. This user will by default send which packet? Discover will be received by all the users because Discover is broadcast and also by my gateway. Yes or no? भाई yes or no? भाई Discover किसको किसको मिलेगा? हाँ भाई टोपी तू बता। आसान नहीं रहा सबको, सबको मतलब किसको किसको? सबको मतलब किसको किसको? हाँ और गेटवे को. When gateway will receive discover packet, gateway will get to know that it is acting as relay agent. Now it will convert this broadcast into unicast and it will forward it to DHCP server. All other process will remain same. The communication between relay agent and DHCP server will be unicast. The communication between relay agent and DHCP server will be unicast. हाँ जी, समझ में आई इतनी बात? हाँ भाई जय किया. चले भाई आगे. ठीक है भाई. So in this example, let me add one more router. This time this device will be acting as no IP DHCP Look here, no pool is existing. शट कर दिया R2 R3 को, सारे होस्ट को. इंटरफेस FA1/0 IP एड्रेस. Let's say between R1 and R2 we are using 12th network. Now I told you there must be reachability between your LAN and the actual DHCP server. So what I will be doing, I will be configuring a routing protocol just to provide it reachability. Let me show you that from R2 I can ping 192.168.1.1. This is gateway of my LAN. This is gateway of my LAN. Now IP DHCP pool. Pool name
LAN network 10, network done, default router done, IP DHCP it means this time it will start assigning IPs from 101. Let me move to host 3. Let me move to host 2. Host 3 getting any IP? No. Host 2 getting any IP? No. Why? Because this time we have not configured R1 as relay agent. भाई क्या कर रहे हो? जैकिया क्या सुना था? अगली बार बताऊंगा इसको. IP by this command you can configure a device to act as relay agent. Fine. So IP address of DHCP server is Reebok. तो बोलता बहुत है. It got which IP? 101. It got which IP? अभी मिल जाएगी, मिली नहीं है. गरीबी रेखा के नीचे है बेचारा. मिल जा. दियो गाड़ी एक बार. अब इस बात को बोलने के बाद दिन में तो कोई काम नहीं कर पाएगा. अरे यार, अरे अरे अरे, ये इसको आईपी मिल कैसे जाएगी? मैंने कैसे दे रखी है? मैनुअली. चलो छोड़ो, फिर अपने तीसरे वाले होस्ट को देख लेते हैं. भाई किसको याद आ रही है? आलोक, संभालो अपने आप को. अभी तो सारा दिन और कई रातें पड़ी हैं. चलो भाई, आस्क कर लो आईपी के लिए. भेज दे रिक्वेस्ट. मान नहीं रहा. ठीक है भाई, इसको डिसेबल करके अनेबल मारेंगे हम एक बार. साढ़े वाई पे भाई इधर देख लो, एक आखिरी प्रैक्टिकल अभी और भी है डीएससीपी में. आप इसको बहुत वो ले रहे हो, क्या बोलते हैं, लाइटली. इतना आसान है नहीं है. सीसीआई में इसकी टिकट्स हैं, जिस सीसीआई लैब्स में डीएससीपी की टिकट्स हमारे पास. टिकट्स होती हैं भाई क्वेश्चंस.
तो आप क्या सोचते हो रियल टाइम में टिकट का मतलब क्या होता है? टिकटिंग टूल्स क्या होते हैं? किसी का क्वेश्चन होता है, आपको आंसर देना होता है, और क्या? प्रॉब्लम बोल लो टिकट को क्वेश्चन की बजाय। मैंने यह क्वेश्चन इसलिए बोला, मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था। अगर तुम रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग लेते हो इसको, तो वो एक ही बात है, करना तो यही है। ठीक है भैया, यूजर को आईपी नहीं मिल रही, मिल जानी चाहिए थी। शायद मेरा वीएम एडेप्टर सही से काम नहीं कर रहा होगा, बट मैंने आपको दिखा दिया। हाँ भाई, इस लाइन में होस्ट को आईपी मिल रही है। क्या आईपी मिली है? चलो इसको भी दिलवा देते हैं। नो आईपी एड्रेस क्या मिल गई, देखो। ठीक है जी। सो दिस इज पर्टिकुलरली योर डीएचसीपी रिले एजेंट। एक लास्ट टास्क कर लेते हैं यार। और मैं क्या कर सकता हूं? लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? लैन के अंदर 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो सेम डीएचसीपी सर्वर से सेम नेटवर्क की आईपी दोनों को मिल सकती है। डीएचसीपी सर्वर एक आईपी एक ही होस्ट को देगा। लेट्स से अब किसी ने क्या किया, राउटर लगा लिया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ऐसा तो हो सकता है ना। यहाँ 12 का नेटवर्क, यहाँ 23 का नेटवर्क। हेयर ही हैज कनेक्टेड वन लैन। कर सकता है। ठीक है, उसने एक लाइन को 2 डिफरेंट लाइन्स में क्या कर दिया। अगर आप कह रहे हो सेम लाइन है, तो पहली बात तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भाई ये वाली लाइन इधर एग्जिस्ट करती है, इधर एग्जिस्ट करती है, आईपी दूं किसको। ट्रैफिक फॉरवर्डिंग अभी भी कैसी होगी? राउटिंग टेबल। हाइपर एड्रेस वगैरह यूज करते हैं उसमें, 2 डिफरेंट वीलैन्स में सेम आईपी। यार ऐसा क्यों करेगा कोई? मैं तो आप सीधी सी बात बोल रहा हूँ ना, ऐसा क्यों करेगा कोई? अगर आपका कंसर्न है कि मैं 2 डिफरेंट वीलैन के लिए सेम नेटवर्क यूज करूंगा, तो मेरा भी पहला एक कंसर्न है। आपने ये चीज कहाँ पढ़ी? मैंने नहीं पढ़ी कभी। फिर ना सोचो इस बारे पे, कहीं पढ़ा हुआ है तो ठीक है भाई। तो मेरा क्या कंसर्न है? व्हाट वी वांट टू असाइन a particular IP to a particular मैं क्या चाहता हूं, एक होस्ट को एक क्या असाइन करना है, एक पर्टिकुलर IP that I want whenever this host will request for IP, this host will get this particular IP. याद रखना, in case of Cisco, if you want to do this thing, you have to create क्या लिखा मैंने? You have to create a per user basis. Let's say you have 10 users in your network to whom you want to assign particular IP address whenever they will request. So you have to create in that case 11 pools. How many pools? 10 pools for those users and 1 pool for rest of the users who want IPs dynamically. Who want IPs dynamically.
दोबारा बता रहा हूं, लेट्स से इन योर नेटवर्क यू हैव 5 यूजर्स whom you want to assign IP address, a particular IP address whenever they will request. You can do this, but for this thing you have to create how many pools? 6 pools. 5 pools for those users and 6 pools for rest of the users in that network who want IPs dynamically. So look here, on R1 I will be creating a pool. देखो, for which pool or for which user I am creating this pool? Let's say for host 3. For which user? और एक मिनट हो जाओ, नाम चेंज करने दो, गंदा सा रखा है। सर आप आ जाना 5 मिनट में। 50 का 50 तक तो हम ही नहीं रहेंगे। 11:50। पहली कमांड क्या चलाऊंगा मैं यहाँ पे? होस्ट। अब तक कमांड क्या चलाता था? नेटवर्क। ठीक है जी, होस्ट को क्या आईपी असाइन करनी है? ठीक है, मैंने बता दिया, अगर कोई यूजर आए उसको आईपी असाइन करते हैं ना, कौन सी? राउटर ने पूछा कौन सा यूजर, to which user I have to assign this particular IP, to which user I have to assign this particular IP. What I am defining? The user which is having this particular client identifier. अब इसका client identifier क्या है? और रुक तो जाओ, show IP DSCP lease, show DSCP lease, ये क्लाइंट आइडेंटिफायर है, इसका दिख रहा है आपको? अब आप कहोगे सर इतना बड़ा क्लाइंट आइडेंटिफायर, तो सबसे बेस्ट वे पता है क्लाइंट आइडेंटिफायर देखने का क्या होता है? debug IP DSCP सर्वर। इस यूजर से एक बार आईपी के लिए रिक्वेस्ट कर लो, वहां पे क्या आ जाएगा? आईपी एड्रेस DSCP, वहां पे क्या आ जाएगा? आ गया क्लाइंट आइडेंटिफायर, दिख रहा है आपको ये? दिख रहा? कर लिया कॉपी? क्लाइंट कर दिया पेस्ट। अब इस यूजर से एक बार दोबारा क्या कर लो, आईपी के लिए रिक्वेस्ट। whenever this user will ask again for IP, which IP it will get? 1.200। देख लेते हैं which IP it got? 1.200। clear भाई? So you can also configure DSCP server to assign a particular IP to a particular client, but in that case you have to do extra configuration, you have to configure extra pools, you have to configure extra pools. Guys, that's all for DSCP। DSCP में मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने से दिखा देता हूँ आपको। देखो DSCP हो गया, DSCP रिले एजेंट भी हो गया, और साथ ही साथ कल पढ़ा दूंगा मल्टी लेयर स्विचिंग, और साथ ही साथ स्टार्ट कर दूंगा। कल डे क्या, वेडनेसडे होगा ना अभी तो? कल इस हफ्ते काफी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। Let's say according to my diagram, R1 is NTP server and R2 is NTP client. And what we want, R2 must synchronize time from R1. NTP is a UDP based protocol, it will use port number 123. देखो भाई, क्या कर लो सबसे पहले? क्लॉक सेट, टाइम सेट तो कर लो। कितने बजा दूं?
11:40 हुए हैं भाई अभी, यही बता दो यार। डे ऑफ द मंथ बताओ भाई, 15 तारीख है आज, आधा महीना चला गया। सैलरी नवंबर 2000 डन भी। Whenever you want to configure a device as NTP server, run the command NTP. Now on R2 show clock. Check the time by default. आ गया 11:40। वैसे इसको बता देते हैं अब NTP सर्वर कौन है। 12:00 ये कमांड चलाओ, देखो शो NTP स्टेटस। NTP इज विद whom 12:00 show NTP association. It is taking time from whom? Show clock. Show NTP status. Clock is synchronized. ठीक है भाई। और इसकी सिंक्रोनाइज किससे है? इंटरनली। किससे है? ठीक है जी, ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं NTP। एक डिवाइस पे NTP मास्टर कमांड चलती है, बाकी सब पे NTP सर्वर कमांड चलती है। ठीक है जी, ऐसे। दिस इज हाउ यू विल कॉन्फ़िगर NTP। बता देता हूं आपको पोर्ट मिररिंग का क्या फंडा है। पोर्ट मिररिंग का क्या मतलब होता है? देखो यार, आपने यहां पे बहुत बार कॉल किया होगा। किया भाई? ठीक है भाई, किया भाई मनोज कस्टमर केयर पे कॉल। ठीक है। Whenever you call customer care, they always say one thing. आपकी कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। So what we actually think that every person who is talking to us on phone is having a voice recorder or is having a call recorder. But no, this is not the case. What we are actually doing in that case, let's say this is my switch. A user is connected to it who is having a which phone? तो हम क्या करते हैं? We will tell this switch that any traffic which is sent from this port or received on this port, please send a copy of that traffic to this. This is your voice server. So what we are actually doing, we are capturing traffic on all the ports and sending it to a voice server. हम क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक सारे पोर्ट्स क्या कैप्चर करके वॉइस सर्वर पे क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। सो दिस पर्टिकुलर मिररिंग, वी आर एक्चुअली मिररिंग द ट्रैफिक। हम ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं? मिरर तो कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द पोर्ट्स टू अ सिंगल पोर्ट। भाई हम जाते हैं सारे पोर्ट्स पे जितना भी ट्रैफिक सेंड और रिसीव हुआ है, क्योंकि सारे पोर्ट से कनेक्टेड कौन है? Who is connected with all the ports? The users who are talking on phone. And what we want to achieve, we want to record their calls. So I am instructing my switch that whenever you receive or send traffic from this particular port, please send a copy of that traffic to the voice server, where I can record my call. Where I can record my. This is the main use of port mirroring. This is the main use of port mirroring. Port mirroring is also called SPAN. What we call it? SPAN stands for Switch Port Analyzer. SPAN stands for
क्या बोलते हैं स्पैन को? स्विच पोर्ट. What we can do in case of span? Switch port analyzer. Look here. When source which you want to capture or you can use the word here mirror, and destination क्या लिखा मैंने? पढ़ो. चार मिनट पहले आ गए सर 2 मिनट बाद 40 हुए यार. ले लो ना। हाँ छोड़ ही रहा हूँ भाई, 1 मिनट दे दो बस. भाई ये स्पैन होता है. What is R span? When source and destination exist on different switches. Concern क्या है मेरा? देखो, let's say these are the sources which you want to capture and here is your voice server. ठीक है जी. So this particular case is called but this particular case is called. तो डिस्कस कर लेंगे स्पैन और आर स्पैन के बारे में कल भी थोड़ा सा. ठीक है जी. रिमोट स्पैन भाई, रिमोट मिररिंग भी बोल सकते हो. यू कैन ऑल्सो